In CRT exercise 13.2, if PA is equal to 3.5 and probability of B is equal to 1.5, find probability of A intersection B if A and B are independent events. Question number 2. Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. Question number 3. A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. Question number 4. Question number 5. A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green is tossed. Let A be the event number is even and V is the event number is red. Are A and V independent? Question number 6. Let E and F are events with probability of E is equal to 3.5, probability of A equal to 3.10 and probability of intersection F equal to 1/5. Are E and F independent? Question number 7, 8, 9, 10, 11, 12. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. 13. Two balls are drawn at random with the replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that both balls are red. First ball is black and second is red. One of them is black and other is red. Question number 14. Probability of solving specific problems independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved. Exactly one of them solves the problem. Question number 15. One card is drawn at random from a bell shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? Part first. E is the event the card drawn is spade and F is the event the card drawn is an ace. तो इस तरीके से ये 3 पार्ट है. Question number 16. In a girls hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspapers. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो मैं इसकी आपको वीडियो बना करके भेजूँगा और जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा, जिसमें आपको परेशानी आएगी, जिसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कमेंट्स करें या मुझे कॉल करें ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है आपको उसकी वीडियो बना के आपको भेज सकूं. एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1. If probability of A is equal to 3/5 and probability of B is equal to 1/5, find probability of A intersection B if A and B are independent events. Probability of A is equal to 3/5. Probability of B is equal to 1/5. Find probability of A intersection B if A and B are independent events. Since A and B are independent events, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो therefore probability of A intersection B is
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 3/5 इंटू 1/5, तो विच इज इक्वल टू 3/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 3/25। Question number 2. Two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. तो टोटल जो कार्ड हैं वो 52 हैं और उनमें से हमने 2 कार्ड जो हैं वो निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो दोनों कार्ड ब्लैक हों, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। टोटल कार्ड्स इन ए डेक 52, therefore NS equal to 52. Since black cards are drawn, total black cards equal to 26. Number of cards to be drawn, two. Since 2 cards are drawn, without a replacement therefore probability of drawing both black card इक्वल टू, अब टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 है, तो पहले की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 26/52 होगी। अब क्या कहता है ये विदाउट रिप्लेसमेंट हमने कार्ड ड्रा करने, विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड जो है वो ड्रा करने, यानी कि जो कार्ड उठाना है उसको दोबारा डालना नहीं है। तो जब हमने कार्ड एक निकाल लिया तो पीछे कितने रहे, ये देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे तो ये मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, इनमें से हम ये 2 कार्ड छोड़ देंगे जो तो इसमें क्या करना है, हमने 2 कार्ड्स जो हैं वो निकालने। तो पहले ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 26/52 होगी। अब ये हमने कार्ड जो है ये निकाल दिया और अलग से रख दिया, तो पीछे कितने रह गए, ब्लैक कार्ड रह गए 25 और टोटल कार्ड रह गए 51, तो 25/51, 26 1s are 26 and 26 2s are 52, तो ये आ गया 25/2 into 51 which is equal to 25/102. Question number 3. A box of oranges is inspected
While examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, will be approved for sale. Total oranges in a box equal to 15. Number of good oranges, develop number of bad oranges, 3. Number of oranges to be selected equal to 3. Since 3 oranges are selected at random, without a replacement, so that the box is approved for sale. Therefore, probability of selecting that a box containing 15 oranges, probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, approved for sale, इज इक्वल टू, अब देखिए टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 15 है। तो फर्स्ट ऑरेंज जो हमने सेलेक्ट करना है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गुड कितने हैं 12, तो 12/50। और क्या कह रहा है वो, ऑरेंजेस आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो ऑरेंज हमने निकाल दिया है उस बॉक्स में से उसको दोबारा नहीं डालना है। तो सेकंड जो ऑरेंज है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वो टोटल में से भी निकल जाएगा और गुड में से भी निकल जाएगा। तो टोटल कितने रह गए, जब हमने एक निकाल दिया 14 और गुड कितने रह गए 11। तो ये सेकंड जो ऑरेंज है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 11/40। और थर्ड जो सिलेक्ट करना है हमने, एक और कम हो गया, यानी कि 13 हो गई टोटल में। और पहले कितने थे 11,
तो हमने एक और निकाला, तो अब रह गई 10। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15, and 2 1s are 2, 7 2s are 14, 3 1s are 3, 4 3s are 12। तो यह आ गया 44 अपॉन 30, 44 अपॉन 13 इंटू 7, ये 7 भी आ गया, ये वाला, विच इज इक्वल टू 44 अपॉन 91। तो ये किसके बराबर हो गया हमारे पास, 44 अपॉन 91। क्वेश्चन नंबर 4, इफ योर कॉइन एंड अनवॉच्ड डाइस आर टॉस्ड। एक कॉइन और एक डाई को हम टॉस करते हैं। लेट ए इज द विंड, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, बी इज द विंड, 3 ऑन द डाई। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो पहले हमने सैंपल स्पेस बनाने हैं इसके, मैंने कॉइन एंड अनवॉच्ड डाई आर टॉस्ड। जब एक कॉइन और डाई को हम टॉस करते हैं, मान लिया ये हमारे पास एक कॉइन है और हमने इसको टॉस किया, तो इसमें हेड आ गया और इसमें टेल आ गया। तो अब इसमें क्या होगा, जब हेड आएगा तो हम एक डाई 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास आ गया कॉइन। तो हमने टास्क किया ही, तो हेड बढ़ा या टेल बढ़ा, हेड बढ़ेगा तब भी डाई थ्रो करनी, टेल बढ़ेगा तब भी डाई थ्रो करनी। तो देखिए सैंपल स्पेस when a coin and a die are tossed। क्या आ गया, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। या तो NS कितना हो गया, NS हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ए जो इवेंट है वो क्या है, ए इज द इवेंट, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट, हेड appears on coin। हेड जो है वो कॉइन पर आता है, तो क्या होगी वो इवेंट, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो एन ए कितना हो गया 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 6 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 6 1 6 6 2 12, 1 अपॉन 2। और दूसरा क्या कहता है, B is the wind, 3 on the die। B is the wind, 3 appears on the
डाई। तो बी हो गया हमारे पास 22 पर 3 आता है, तो एक भी आ गया H3 और T3। तो N भी कितना होगा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/12 दैट इज इक्वल टू 1/6। अब क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसी इवेंट्स होती हैं जिनकी हम इंटरसेक्शन करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लिया ए और बी दो हमारे पास इवेंट्स हैं और हमने चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकी इंटरसेक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होनी चाहिए। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B। ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, तो probability of A intersection B हमें लेना है, तो A intersection B कितना आता है हमारे पास, A intersection B, A क्या है, event had appears on time, और B क्या event है, 3 appears on the die, यानी कि H3 जो है H3 जो है ये A इंटरसेक्शन B आ रहा है, तो N A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/12, ये आ गई सेकंड। फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, या फ्रॉम फर्स्ट लिख दे, फ्रॉम फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 विच इज इक्वल टू 1/12। तो देयरफॉर फ्रॉम second and third probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Hence A and B are independent events, independent इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंस इवेंट्स शो करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो दो इवेंट्स हैं उनकी हमने इंटरसेक्शन लेनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अलग अलग करके उन इवेंट्स की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अगर उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी प्रोबेबिलिटी के बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दे are independent